Please confirm me. Can you hear my voice clearly and see the I PPT can screen hear. so we can start our class? Okay. In yesterday's class, we have discussed the numbers in Chinese, and almost we have completed and cleared the concept of numbers, how we can make the numbers from 1 till 1000 and onwards. So we will discuss these numbers and additional things in the offline class, because it is more easy to communicate in the offline class, and in the online class we will be covering the different lessons from the book. So far we have completed uh, finals, initials, and a lot of vocabulary from the 15 lessons. But still, we have to go more lessons. We have to cover more lessons, and in each lesson, you will see the new vocabulary. You will see the new words, and now we will be focusing on making new sentences. In this lesson, we will understand how we can make new sentences, and we will try to learn the structure of new sentences. Just like we read grammar in English, and we read the sentence structure in English, same likewise, we will discuss how we can make the sentences in Chinese language from scratch, from simple, very simple sentences. So, our today's lesson, lesson number 16, will be covering the vocabulary, words, phrases, sentence patterns. So, first of all, we have vocabulary in this lesson. Might be you have studied some words in your previous lessons, but also we will learn new vocabulary, words, characters in this lesson. So, our first word is ch, ch, Z-H-E. The sound of Z-H is ch, so we will pronounce it ch. It's a fourth tone ch. Ch means this. It is used to indicate anything which is near to you, just like this is book, this is me, this is my friend, this is pen, this is pencil, this is table, this is chair, just like this. So whenever we want to say this, we will use ch. Then second word is ing one. ing one ing one means English. So here there are two words, ing and one. So one is mostly used to indicate any language. It is also used for the chong one, means Chinese. Ing one means English. So one especially indicates the language, any language. So ing one means English. Ing one means English. Then third word is lao. Lao is a second tone, and if we divide the L and OU in two words, we will have a one initial and one final. L is initial, OU is final. L हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनिशियल है, और OU क्या है हमारे पास, फाइनल है. ठीक है. O और U को हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, उसको हम प्रोनाउंस किस तरीके से कर रहे थे, आओ आओ. तो यहाँ पे सेकंड टोन एल, इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे तो ये किस तरीके से प्रोनाउंस होगा, लाओ. लाओ मीन्स बिल्डिंग या फ्लोर. ये हम वर्ड जो करेक्टर है ये बिल्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ई लो, अर लो, सन लो, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं. फोर्थ वर्ड इज च्याओ श. च्याओ श.
यहाँ पे जैसे कि SHI है तो यहाँ पे हम इसको जाओ शी नहीं पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि SCZSHZH के साथ आई जो है वो साइलेंट होता है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? जाओ श मीन्स क्लासरूम, जाओ श मीन्स क्लासरूम. Fifth word is Hua, Pao, Hua, Pao, pictorial. मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें पिक्चर, आप लेट सपोज आप जो है ना वो कोई चीज़ बना रहे हैं, आप कोई एग्जांपल किसी को समझा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप पिक्चर का यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं पिक्टोरियल. अगर मैं लेट सपोज आपको लेसन पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं किसी की पिक्चर कोई इस स्लाइड में ऐड करके आपको समझाऊँ, तो वो क्या बन जाएगी? एक पिक्टोरियल स्लाइड बन जाएगी. ठीक है, तो पिक्टोरियल को चाइनीज में कहते हैं हुआ पाओ. हुआ पाओ means pictorial. Sixth word is Chong Wan. Chong Wan means Chinese. Chong Chong Go हम चाइना को कहते हैं. चोंग का असल जो मीनिंग है वो है सेंटर, सेंटर बीच. किसी भी चीज़ की जो मिडिल होती है, बिल्कुल सेंटर होता है, उसको हम चोंग कहते हैं. तो चाइनीज जो मानते हैं कि चाइना इज़ द सेंट्रल प्लेस इन द वर्ल्ड, कि चाइना जो है वो दुनिया में कहाँ पे है? दुनिया के सेंटर में है. वो यूज़ होता है कंट्री के लिए. तो चुंग वो मीन्स सेंट्रल कंट्री. इसकी मीनिंग तो ऐसे होगी, मगर इसका जो है वो नाम चाइना का है. चुंग वो मीन चाइना, और यहाँ पे क्या है? चोंग वन मीन्स चाइनीज लैंग्वेज, Chinese language. Chongguo, Chongguo, Chong, center, Guo, country, central country, yeah, China. Seventh word is Liu, Shui, Shang, Liu, Shui Shang, Liu, Shui Shang means foreign student. I guess, Chongguo, I guess it is not first tone, I think it is a second tone. You can check it, the tone in the Blackboard dictionary. You can check the tone in the Blackboard dictionary. Chongguo, I think it is second tone. Okay. Liu, Shui, Shang. Liu means foreign, foreign, international उसके लिए use करते हैं. Shui Shang means student. Liu Shui Shang means foreign student. Liu Shui Shang means foreign student. Eighth word is Tai, Fu, ताई. फू मीन्स डॉक्टर. डॉक्टर कौन सा? मेडिकल डॉक्टर. जैसे हमारे पास MBBS डॉक्टर्स होते हैं, तो उनके लिए यह यूज होता है ताई. फू मीन्स डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर. जानवरों वाला डॉक्टर नहीं, मेडिकल डॉक्टर. नाइन्थ वर्ड इज चाओ. चाओ, चाओ मीन्स टू टीच. चाओ मीन्स टू टीच, पढ़ाना, टू टीच. टेंथ वर्ड इज थोंग स्वे. थोंग स्वे, यस, सेकंड टोन है. सेकंड टोन मुझे भी यही जो है ना वो याद आ रहा था, क्योंकि इसके आप वॉइस में अंदाजा लगा सकते हैं इस पर सेकंड टोन है. ओके. टेंथ वर्ड इज थोंग श्वे मीन्स फेलो स्टूडेंट, क्लासमेट, स्कूलमेट, क्लास फेलो, सब इसकी मीनिंग है. जैसे कि आपके साथ जो दूसरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो वो क्या है? आपकी क्लास फेलो. ठीक है, आप क्लास फेलो, तो इसके लिए यूज़ होता है थोंग श्वे मीन्स क्लास फेलो, फेलो स्टूडेंट. 11th word is Hangyo. Hangyo means friend. Hangyo, friend, dost. Hangyo, Hangyo means friend. Hangyo means friend. ये हम लास्ट लेसन में पढ़ चुके हैं ये वर्ड. Okay, now come towards the sentence. How we can make the sentences from very simple. Uh, we can start from very simple sentences. ये सर ईशंग भी जो है मुझे याद आ रहा है, डॉक्टर को कहते हैं. देखिए डिफरेंट जो है ना वो मीनिंग्स हो सकती हैं, लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, एक वर्ड होता है,
उसके डिफरेंट जो है सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने इंग्लिश में पढ़े होंगे। सिनोनिम्स वो होते हैं जिन वर्ड्स की सेम मीनिंग होती है। वर्ड्स डिफरेंट होते हैं मगर उनकी मीनिंग सेम होती है। एंटोनिम्स वो वो वर्ड्स जिनकी अपोजिट मीनिंग होती है उस वर्ड से। वो ईशा, यस डॉक्टर, ओके। नाउ कम टूवर्ड्स द सेंटेंसेस। तो हम सेंटेंसेस किस तरीके से बनाएंगे, पहले हम जो है ना बिल्कुल सिंपल जो है वो देखते हैं कि उसमें कौन कौन से हम ऐसे हेल्पिंग, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रामर यूज़ नहीं होती, चाइनीज़ में कहीं कहीं पे होती है। तो पहले आपको जो वेरी सिंपल, जो आप सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, जिसमें जिसको हम टू बी वर्ब भी कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या है, इज़ एम आर। इज़ एम आर। तो इसको चाइनीज़ में हम किस तरीके से पढ़ेंगे, श। एक हमने पढ़ा था श, जो हमने कल पढ़ा था 10, 10, वो अलग था, उस पर सेकेंड टोन थी, इस पर फोर्थ टोन है। श मीन्स इज एम आर, ये इज एम आर के लिए यूज होता है, श। श, ठीक है। अब हम पहले बिल्कुल इजी स्टार्ट करेंगे। श स्वे शंग, श स्वे शंग, स्टूडेंट, सिंपल स्वे शंग स्टूडेंट, श स्वे शंग इज स्टूडेंट, इज स्टूडेंट। अगर हम इसको और मज़ीद जो है वो और सेंटेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं, कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम डिफरेंट जो है ना हम ऐड कर सकते हैं नाउन। अब नाउन कौन से हैं, इज आई है, इसमें आपने फर्स्ट पर्सन पढ़ा होगा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में सेकंड पर्सन पढ़ा होगा, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में कौन सा होता है, वी। लेकिन सेकंड पर्सन मी, यू। सेकंड पर्सन कौन सा है, यू। थर्ड पर्सन में कौन से आ जाते हैं, ही, शी, इट। ठीक है, ये सिंगुलर है। प्लूरल में हम कौन से यूज करते हैं, दे। ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो है वो फर्स्ट पर्सन आपका है, आपका जो है वो आपका सब्जेक्ट है, नाउन है, वो श स्वे संग, वो श स्वे संग, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। तो वो क्या शो कर रहा है, आई। वो श स्वे संग मीन्स आई एम स्टूडेंट। यस, प्रेजेंट पर ज़्यादा आपको यहाँ पे जो है वो चाइनीज़ में इतना जो है ना वो प्रेजेंट का, जैसे कॉम्प्लेक्स, हमारी इंग्लिश ग्रामर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे टेंसेस हैं, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, फिर उसमें बहुत सारे उसके टाइप्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई टिपिकल ग्रामर में यूज़ नहीं होती चाइनीज़ में। ठीक है। हाँ, करंटली अगर हम बिल्कुल एक सिंपल बात करें, जिसको हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, आई एम स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक शागिर्द हूँ, आई एम स्टूडेंट, वो सिचुएशन। अच्छा, इसको हम अगर हम ये करना चाह रहे हैं कि यू आर स्टूडेंट, तो उसको हम कैसे करेंगे, नी। इसको सिर्फ हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, यू। यू ऐड करेंगे, वो को हटा के नी यूज करेंगे। नी मीन्स यू, नी श स्वे शंग, नी श स्वे शंग मीन्स यू आर स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट। अच्छा, अब इसमें जो ही और शी है, दोनों को हम था पढ़ते हैं, दोनों को हम था कहते हैं, मगर इनके जो आपको ओपिनियन मिलेंगे वो सेम है, बाकी इनके कैरेक्टर्स में डिफरेंस है। अब था, ही का कैरेक्टर आप देख रहे होंगे वो चेंज है, और शी का कैरेक्टर चेंज है। ठीक है। अगर आप ऑब्वियसली अगर आप जो है वो किसी किसी भी फीमेल से या मेल से आप वर्बली उनसे पूछेंगे, तो दोनों जगहों पे आप था यूज करेंगे। था situation, he or she is student, he or she is student, has situation, has situation। अच्छा, ये तो आपके हो गए सिंगुलर। अब चाह रहे हैं हम प्लूरल में बनाएं, we are students। अब इसको हम कैसे कहेंगे, आप हमने पढ़ा था कि जब भी हम प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या ऐड करते हैं, मन, MEN। अब आई को वी में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मन लगा देंगे वो के साथ, वो मन।
我们是学生我们是学生 means we are students we are students अच्छा अब चाह रहे हैं कि दे आर स्टूडेंट्स अब इसको कैसे कहेंगे क्योंकि था जो है वो हम ये था यूज करते हैं शी के लिए सॉरी ही के लिए शी के लिए तो हम दे के लिए क्या यूज करेंगे हम जब मन ऐड कर देंगे था में तो वो क्या बन जाएगा ही और शी में से कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा दे था मन स्वे शंग था मन स्वे शंग मीन्स दे आर स्टूडेंट्स दे आर स्टूडेंट्स बेटा यहाँ पे कोई जो है ना वो टिपिकल ग्रामर नहीं है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कोई टिपिकल ग्रामर चाइनीज में आप ग्रामर को इतना ज्यादा जो है वो फोकस ना करें फिलहाल आप सिंपल सेंटेंसेस को देखें स्ट्रक्चर को देखें आप इतनी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो आपको कुछ अभी एडवांस लेवल की चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी अभी आप बिल्कुल बेसिक पे जो है वो ध्यान दें फोकस करें ठीक है टिपिकल ग्रामर जैसे इंग्लिश में यूज होती है चाइनीज में इस तरीके से कोई भी टिपिकल लैंग्वेज सॉरी ग्रामर यूज नहीं होती ओके सेकंड अच्छा अब हमारे पास जो करेक्टर है वो क्या है च च च मीन्स दिस च अच्छा अब अगर हम एक किसी ऐसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं जिसमें हम तादाद मालूम करना चाह रहे हैं जिसमें तादाद है जैसे कि बनानाज हैं अब बनानाज है फ्रूट हैं जैसे कि हम उसको तादाद है एक है दो है तीन है चार है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे ग मेजरिंग वर्ड है ग क्या है मेजरिंग आपका एक पार्टिकल है वो, वो कहाँ पे यूज होगा जहाँ जहाँ पे हम तादाद शो करेंगे नंबर्स शो करेंगे तो वहां पे हम चग 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 ठीक है अब च यूज हो रहा है करीब कोई आप इंडिकेट कर रहे हैं जो आपकी चीज करीब है बिल्कुल आपके नियर है उसमें हम च यूज करते हैं कोई चीज जो आपसे दूर है डिस्टेंट है तो वहां के लिए हम क्या यूज करते हैं इंग्लिश में दैट को चाइनीज में हम क्या कहेंगे ना ना अगर हम तादाद नंबर शो कर रहे हैं ऐसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं जिसमें हम तादाद है जैसे कि 4 एप्पल्स 5 एप्पल्स 6 बनानास तो वहां पे हम क्या करेंगे ना ग ना ग ग मीन्स यहाँ पे क्या तादाद शो करना अच्छा अब हम कोई ऐसा सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि इज यूज करना है हमें तो वहां पे हम ग को हटा के जहाँ पे तादाद कोई नहीं है कोई ऐसी तादाद नहीं है कोई एक सिंगल है कोई आपकी ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम शो कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे श च श श मीन्स दिस इज श मीन्स दिस इज श मीन्स दिस इज कोई ऐसी चीज़ जो दूर है आपसे दूर है डिस्टेंट है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं इंग्लिश में दैट इज और इसको हम चाइनीज में क्या करेंगे ना श ना श मीन्स दैट इज ना श मीन्स दैट इज यस इज एम आर तीनों के लिए हम श लगाएंगे श वो हम जो है ना वो इंट्रोगेटिव पे भी आ रहे हैं इंट्रोगेटिव पे सेंटेंस भी आ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में है अली गुलाम हम नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं उस पर मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव किस तरीके से बनाते हैं ठीक है तो अब हम सेंटेंस बनाते हैं कि दिस इज बुक इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे दिस इज बुक क्योंकि बुक आपके करीब पड़ा हुआ है सामने पड़ा हुआ है तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे च श शू शू मीन्स बुक च श शू मीन्स दिस इज बुक दिस इज बुक अच्छा आपके सामने परिंदा जो है ना वो उड़ता जा रहा है फ्लाई कर रहा है दूर है आपसे अब उसको आप कैसे अगर आप अपने दोस्त को बता रहे हैं तो किस तरीके से बताएंगे दैट इज बर्ड क्योंकि आपसे दूर है तो वहां पे चश यूज नहीं करेंगे वहां पे क्या करेंगे आप ना श न्याओ न्याओ मीन्स बर्ड ना श न्याओ ना श न्याओ मीन्स दैट इज बर्ड दूर के लिए हम क्या यूज करेंगे ना
बेटा बहुत सारे अभी मेजरिंग वर्ड आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। बिल्कुल यहाँ पे चाइनीज़ थोड़ी डिफरेंट है। हम इंग्लिश में जैसे कि मेजरिंग वर्ड बनाते हैं तो जो है ना वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मगर चाइनीज़ में अगर आप बुक के लिए यूज़ करेंगे तो उसके लिए अलग होगा, वेट के लिए करेंगे तो अलग होगा, आप अगर क्लॉथ्स के लिए करेंगे तो मेजरिंग वर्ड अलग होगा, अगर आप जो है वो नंबर्स के लिए करेंगे तो अलग होगा। ये अलग अलग हम जो है वो आगे जैसे जैसे लेसन आते जाएंगे तो हम बेटा वो न्याव जो है वो दूसरी उसकी मीनिंग डिफरेंट होगी। ये न्याव जो बर्ड है इस पे जो है वो थर्ड होगी। नाउ कम टुवर्ड्स द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनाएंगे, सवालिया जो जुमले हैं वो किस तरीके से बनाएंगे। वैसे तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर यहाँ पे हम जस्ट माँ के साथ जो है वो बना रहे हैं सेंटेंसेस, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस की मीनिंग क्या निकल रही है, उसके हिसाब से हम जो बनाएंगे। अब लाजमी नहीं है कि हम सब सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए माँ का यूज़ करें, लाजमी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। वो ऐसा हम जब जैसे जैसे सेंटेंसेस बनाते जाएंगे तो वो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, आर यू स्टूडेंट। अगर आपसे आप किसी से पूछ रहे हैं आर यू स्टूडेंट, सामने आपके दोस्त है आप या कोई जानने वाला है, आप उससे पूछते हैं आर यू स्टूडेंट, तो अब इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, पूछेंगे ना स्वेशंग मा, सॉरी 你是学生吗 Are you student? 你是学生吗 Are you student? यहाँ पे हम यूज क्या कर रहे हैं, माँ, और माँ हमेशा जो है वो कहाँ पे यूज होता है, सेंटेंस के लास्ट में। अच्छा, सेकंड सेंटेंस इज ही और शी स्टूडेंट। इज ही और शी स्टूडेंट ऐसे ही बनाते हैं ना, इज ही और शी या इज ही स्टूडेंट। आप आपके साथ दोस्त मौजूद है, आप जो है ना वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि इज ही स्टूडेंट, तो हम कैसे पूछेंगे, था स्वेचंग। अब था ही के लिए भी यूज होता है और शी के लिए भी यूज होता है। था स्वेचंग, इज ही और शी स्टूडेंट। थर्ड सेंटेंसेस, अच्छा, थर्ड सेंटेंस है प्लूरल के लिए, मतलब एक एक स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, प्लूरल है। तो उसके लिए उनके लिए आप पूछ रहे हैं आर यू स्टूडेंट्स, आर यू स्टूडेंट्स, तो उनके लिए आप कैसे पूछेंगे, नीमंस स्वेशनमा, नीमंस स्वेशनमा, नीमंस स्वेशनमा, आर यू स्टूडेंट्स, आर यू स्टूडेंट्स। और फोर्थ सेंटेंस हमारा कौन सा है, आर यू स्टूडेंट, आर दे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यू नहीं है, यहाँ पे दे आएगा, आर दे स्टूडेंट्स, आर दे स्टूडेंट्स। आप जो है वो अपने दोस्त से पूछ रहे हैं, सामने तीन चार पांच स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि आर दे स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से हम इसको बनाएंगे सेंटेंस, था मंस स्वेशंग, तो दे के लिए हम यह क्या यूज कर रहे हैं, था मन, था ही और शी के लिए यूज करते हैं, मन जब लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, दे, था मन से स्वेशंग। ओके, अब आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। अब नेगेटिव सेंटेंसेस को भी बनाने के लिए जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, पैटर्न्स हैं, मगर यहाँ पे हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं जहाँ पे हम सिर्फ बू का यूज कर रहे हैं। बू हमने पढ़ा था लास्ट लेसन्स में। तो पहला स्टूडेंट है, आई एम नॉट स्टूडेंट, आई एम नॉट स्टूडेंट, सो हाउ यू विल से, वो वो बू学生वो बू学生। तो यहाँ पे नॉट जो है वो, नॉट को हम किस तरीके से लिख रहे हैं, बूश, बूश, वो बूश, ठीक है। तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, सबके लिए जो है वो सेम यूज होगा, बूश। बू जो है वो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज होता है, मतलब जहाँ पे आप की जो है वो इनकारी जुमले जिसको हम कहते हैं वो। सेकंड सेंटेंस इज आर यू, सॉरी यू आर नॉट स्टूडेंट, यू आर नॉट स्टूडेंट। अब यहाँ पे यू कौन सा है, सिंगुलर, सिंगुलर सेकंड पर्सन। यस, श देखिए ना, श आप जो है वो इज एम आर के लिए यूज करते हैं। इज एम आर का ये क्या है, एक आप समझ लें कि पार्टिकल है, सपोर्टिंग आपका एक क्या है,
वर्ड है, सपोर्टिंग वर्ड है। श नी बुश situation नी bush situation means you are not student, you are not student. Fourth sentence is he or he is not student or she is not student. Tha bush sui sheng tha bush sui sheng tha bush sui sheng. Tha means he or she दोनों के लिए यूज होगा. Bush means not, is not. Sui sheng means student, he is not student. Yes, yes, is एम आर के लिए हम श यूज करेंगे. Yes, same Deveria. Ha, who, situation means he or she is not a student. So this is all about the today's lesson. So do practice. आप अपनी practice करें. I will upload all these lessons in the Google Class by today, and record the recordings on the weekend because YouTube is not working here in the university.